हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग। अब फाइन फाइन, व्हाट अबाउट यू? गुड। उसकी 3 4 ऑफिस है बढ़िया, वहां जाओ बैठो। वहाँ सब लोग आते भी है बढ़िया, एक महीने एकदम।
ये क्या है? कौन सी मीटिंग है? अरे वो ऐसी। कौन सी मीटिंग है भाई, बता दो यार। अरे सौमित है ना प्रेसिडेंट। I सौमित would जान। request everybody to just put their mics on mute for now. We'll start in another 5 minutes. Request everybody to be on mute. Please keep a pen and paper handy. Very good morning, Deepti. Thank you. Deepti, ma'am. can you please make me co-host to share the screen? Sure, ma'am. I'll just do that. Yeah, thank you. Ma'am, just give me 5 minutes. Yeah, sure. Richa ji, I think you are now co-host. Okay, Please check. You would be able to share there. thank you.
दिमाग में यही रखी, हर बार यही था। पिछली बार भी वुमेन्स में आके रही, 2 महीने तक गिड़गिड़ाने लगी हो। Good morning, everybody. Who's our very esteemed alumni, Richa Agarwal. You know, we've already shared uh, we've already shared a brief about Richa Agarwal, Institute of Management, batch 1999. She's done her BSc, PGDBA, MBA, and B.Ed from SNDT University. She's also been in the teaching profession, but since the last 4 years, she's been associated with Sukrana Gratitude Education. Ma'am, please correct me if I made mistake in naming the institute. But she's facilitating law of attraction, manifestation, affirmation, gratitude, and basically working on, how to manifest your dreams and counting your blessings. Yeah. So She says that, ma'am, I think you can elaborate that Yes. more. She's led workshops on visualization, vision board, communication, and personality development. Today, we are all here to, take something back for ourselves. It's a very, very, I would say, cluttered, chaotic environment that we are living in today. And I think let us take some inspiration and take some learnings back, how to manifest dreams, count our blessings. Ma'am, over to you now. Thank you Yeah. so much. Thank you so much, Deepti. Thank you so much for inviting me here. Very good morning to one and all present here. So I'm Richa Agarwal from Mumbai, and I have done PGDBA from Jaipur Institute of Management, Lucknow, 99 batch. So, and then Deepti very rightly introduced me. Thank you so much for beautiful introduction, Deepti. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते एक बार फिर से, and thank you so much for joining in. So I'm associated with this gratitude journey from last 4 years. Like आजकल जैसा scenario है, so this webinar will be very simple, no PPT, nothing, very interactive session, and you will find it very interesting. And we will learn many new topics like law of attraction, manifestation. आजकल सुना होगा बहुत ज्यादा manifestation चला है, संकल्प से सिद्धि, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए. So we will talk about all these things, and I think English will be better, like Hindi and English mix language में बात करेंगे. So this is very interactive session with lots of activities, and I thank all my mentors जिनसे हमने ये सब सीखा है. I thank Mrs. मुदिता अग्रवाल जिन्होंने हमें इस जर्नी से इंट्रोड्यूस करवाया है. So
यहाँ पे हम सबसे पहले सपनों के बारे में बात करेंगे। कहते हैं ना, अब्दुल कलाम जी ने भी बोला है कि सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो हम सभी के कुछ ना कुछ सपने जरूर होने चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारे पास तो सभी कुछ है, वी हैव एवरीथिंग, वी डोंट वांट एनीथिंग। ठीक है, वी हैव एवरीथिंग, बट अगर आपको यही चीज कंटिन्यू रखनी है तो वो भी तो हमारे सपने हुए ना। तो वी हैव ड्रीम्स इन फाइनेंशियल रीजन एरिया, हेल्थ एरिया, करियर में रिलेटेड होता है, हेल्थ में होता है, करियर, फाइनेंसेस, मैरिज, सभी में हमारे सपने कुछ ना कुछ होते हैं। और हर समय हम चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अब देखते हैं हम कि काउंटिंग माई ब्लेसिंग से करके कैसे वी कैन अचीव और वी कैन मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स। सो सबसे पहले वी हैव टू बी प्रिपेयर अ वेरी गुड डिटेल्ड ड्रीम लिस्ट, क्योंकि हमें किस पे काम करना है। ठीक है, तो जब ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, तभी हम उनको मैनिफेस्ट करते हैं। एंड नथिंग इन दिस लाइफ इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन। संकल्प से सिद्धि। कहते हैं कि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। जो भी हम बोलते हैं, हमारे शब्द ही हमारे संसार की रचना करते हैं। तो आज हम सभी इन सभी बातों पे बात करेंगे कि कैसे हमें क्या शब्द बोलने हैं, कैसे सोचना है, बिकॉज आवर थॉट्स क्रिएट आवर कैरेक्टर, और कैरेक्टर से हमारी आइडेंटिटी बनती है, देन आइडेंटिटी से हमारी डेस्टिनी बनती है। सो सबसे पहले विचार बनाए जिंदगी। तो कहते हैं अब हमारा ऐसा हो गया है कि सोचना भी सोच के पड़ता है। सो अगर डिफरेंस बताएं, व्हाट वाज आई वाज अर्लियर, 4 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है। सो एबीसी ही चेंज हो गई है। पहले था ए फॉर एंग्री, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, फॉर मी ऑल्सो, जो आजकल नाउ डेज इट्स वेरी कॉमन। बी इज ब्लेम गेम, सी इज कंपटीशन, कंपैरिजन, है ना। और ये कंप्लेन बॉक्स थे, क्रिटिसिज्म करते थे। नाउ एबीसी हैज चेंज टू अप्रिसिएशन, ए इज फॉर अप्रिसिएशन, बी इज फॉर ब्लेसिंग्स, बी इज फॉर ब्लिसफुलनेस, एंड सी इज फॉर कंपैशन, चीयरफुलनेस, काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। इस तरह से हमारी एबीसी चेंज हो गई है। बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, कामनेस आ गई है, विच इज द नीड ऑफ द आवर। आजकल की जरूरत है ये। पहले अर्लियर बहुत कम कम हंसते थे, अभी हर समय हंसते रहते हैं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे इज 4th में, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग लाफ्टर डे। तो कहते हैं हंसते रहो, काम बनते चले जाएंगे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। और ऐसे भी बोलते हैं हम लोगों में कि जो हंसेगा उसका घर बसेगा। तो इसलिए एक बार सभी लोग हंसेंगे। आजकल बहुत ही कम हो गया है हंसना, तो सभी तेज से हंसेंगे एक बार। सो अगर बोलें कि हमने कहाँ से इस जर्नी को स्टार्ट करा था, सो दिस मैजिक बुक बाय रोंडा बन, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस बुक। लेकिन ये कहते हैं कि ये मैजिक बुक, द मैजिक बुक रोंडा बन की, एक पढ़ने वाली बुक नहीं है, ये करने वाली बुक है। हम लोग ऐसे पूछते हैं कि आप यू हैव डन मैजिक बुक, बिकॉज इसमें जो असाइनमेंट्स हैं वो हमें करने की जरूरत होती है। सो दिस इज द ग्रंथ। इसमें बताया है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करके हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। सो ये सभी लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, इन ऑल द लैंग्वेजेस इट इज अवेलेबल। हिंदी में ऐसे है जादू रोंडा बन। लोग इस नाम से सुनते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या जादू टोना करने वाले हैं। तो नथिंग जादू टोना इन दिस, ओनली ग्रेटिट्यूड एंड हाउ टू मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स बाय काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। तो अगर बात करें तो क्या हमने कभी भी ग्रेटिट्यूड करा है? ग्रेटिट्यूड इन द सेंस, आज हम सुबह सुबह उठे हैं, क्या हमने उसके लिए थैंक यू करा? आप समझ सकते हैं 700 करोड़ पीपल में से कितने लोग आज नहीं सो के उठ पाए। बट वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें क्या हो गया, बहुत से लोग उठते हैं, है ना। इतना बढ़िया करोड़ों का शरीर हमें मिला है, नेचर ने हमें प्राकृतिक रूप से बॉडी दी है, इसमें करोड़ों की मशीन लगी है। आप लंग्स ले लो, हार्ट ले लो, किडनीज ले लो, एनी बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम, बट एवर एवर कभी भी हमने इसका ग्रेटिट्यूड करा है? तो यही हमें सिखाता है कि ग्रेटिट्यूड करके किस तरह से कामनेस, पॉजिटिविटी, अवेयरनेस में आना है और अपने ड्रीम्स को पूरे करते जाना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सोर्स रिलेशनशिप के लिए, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी और डैडी, उनके लिए एवरी डे वी हैव टू पे ग्रेटिट्यूड, क्योंकि दे आर आवर चार्जर्स, वो हमारे सोर्स रिलेशन है। एक एग्जांपल के साथ अगर बताएं तो हमारे पास, इफ आई हैव अ मोबाइल बट इट इज नॉट चार्ज्ड, so it is useless, we cannot do anything with that mobile,
द सेम वे आवर सोर्स रिलेशन, आवर पेरेंट्स आर चार्जर्स, तो उन चार्जर्स के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है। वर्ल्ड में सिर्फ वही दो लोग हैं जो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे। दे विल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड फॉर यू, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर सोर्स रिलेशनशिप। एंड द पावर इज विद इन अस, सारी शक्ति हमारे अंदर है। हमने कभी ये सोचा है क्या इस तरह से? तो आपको आज हम एक एनर्जी का रियलाइजेशन करवाते हैं विद अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी। वी विल चैंट थैंक यू एंड देन वी विल डू दिस एक्टिविटी एंड देन यू विल शेयर व्हाट यू रियलाइज्ड। ठीक है, सब द पावर इज विद इन अस, एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे हाथों में वो एनर्जी है, हम सब कुछ काम अपने हाथों से करते हैं, तो हम अपने हाथों की एनर्जी को फील करेंगे। सो वी विल चैंट थैंक यू, पहले थैंक यू बोलेंगे, देन वी विल प्लेस आवर पाम्स लाइक दिस, 1 इंच के डिस्टेंस पे अपने हाथों को रखेंगे ऐसे पाम्स को, एंड देन वी विल डू दिस एक्टिविटी। सो फर्स्ट क्लोज योर आईज एवरीवन एंड चैंट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, to activate the power of gratitude. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sit straight, take deep and long breath. Keep both the palms like this. 1 इंच का डिफरेंस दोनों के बीच में गैप रखिए and rotate it clockwise and chant thank you. धीरे धीरे, very slowly, thank you. Clockwise direction में rotate करेंगे, thank you, 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 thank you. Now rotate it anti-clockwise very slowly. Thank you. ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, only 1 इंच. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take it apart. थोड़ा सा दूर ले जाइए, पास लाएं, दूर, पास, दूर, पास, and say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Again, rotate in clockwise direction. Thank you, thank you. Very slowly. Thank you, thank you. Now open your eyes and keep your hands back. Yes, I want the reaction from you. You can tell me what did you feel? क्या feel करा आपने? दीप्ति क्या अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग? Yes, ma'am. You can Yeah. unmute them. Maybe I'll start with how I felt. It was a very strong energy between the hands that I was feeling. And even while movement, initially नहीं समझ में आ रहा था, but over a period of time, I started feeling a very strong energy between my hands. Very nice, beautiful answer. Thank you, Dipti. So anyone else wants to share what feeling you have realized now? Hi, Richa. Paritosh here. Hi, Paritosh. Yeah. So Richa, feeling of lightness within. ठीक है. Okay. अब I think we are at this age, so this मतलब means a lot, and this is very priceless actually to get into that kind of that kind of pedestal altogether. So I feel that मतलब it was more of something, some energy flowing inside you, making you light from inside. So that was something which I felt. Very nicely said, Paritosh. Thank you so much for your reply. So you can feel the energy in your hands, yes? So Yeah, everything is energy. Everything is energy, and we will play with the energy here. ठीक है? And like attracts like. So here we comes to law of attraction. Law of attraction की बात करते हैं, तो this is like attracts like. न्यूटन ने भी साइंस, दिस इज ऑल इज साइंटिफिक, दिस ऑल इज साइंटिफिक. अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने भी बोला है, न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना? तो जो हम बोलते रहते हैं ना हर समय,
मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी शादी खराब चल रही है, मुझे और पैसा चाहिए, तो पता है वॉट एवर योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आप जो भी बोलेंगे आपके पास वही उतना ही लौट के आएगा। इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक एनी अदर लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स वेरी 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 स्ट्रांगली। तो जो भी आप बोलेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो इसलिए हमेशा ये बोलिए मेरे बच्चे तो मेरी धरोहर हैं। लाइक नेवर कंप्लेन अबाउट योर किड्स, लव योर किड्स इमेंसली, क्योंकि ये भगवान की कुदरत की बात है कि उन्होंने हमको उनका पेरेंट्स बनाया है, लेकिन वो भगवान के बच्चे हैं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा इतने भर भर के एनर्जीज दीजिए कि वो बिल्कुल ब्लेस्ड फील करें, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिहाइंड मी, है ना। आपको इसी बात पे एक बात बताते हैं, थॉमस एडिसन था, ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज। तो उसको एक बार स्कूल से फेल हो गया, निकाल दिया गया, उसको बोला अपनी मम्मा को बुलाना, उनको एक लेटर देना है। ठीक है, अगले दिन मम्मा गई स्कूल में, उसको लेटर दिया गया। तो थॉमस एडिसन पढ़ नहीं सकता था, उसको पता नहीं था कि लेटर में क्या लिखा है। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा व्हाट इज रिटन इन द लेटर। सो उसकी मम्मा ने बोला कि इसमें लिखा है कि बेटा आप इतना तेज होना, इतने एक्टिव स्मार्ट हो कि इस स्कूल के टीचर्स आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो मैं आपको घर में ही पढ़ाऊंगी। और वो चीज उसके दिल में इतनी घर कर गई कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार करा आफ्टर 90,000 फेलियर एक्सपेरिमेंट्स। तो माँ के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत है ना कि आप जो अपने बच्चों को बोलोगे वो बच्चे विश्वास करेंगे और वही वो बन जाएंगे। तो अपने बच्चों में पूरा विश्वास रखिए। ठीक है। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर बोला जाए तो इसमें अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन सभी कुछ काम करता है। और लाइक हमने बोले लॉ ऑपरेट करता है एनर्जीज की दुनिया में, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए आपको बहुत कुछ अपना स्टेक पे लगाना होगा। इसलिए ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, रिमेन इन अवेयरनेस। ठीक है। नाउ आई हैव सीन रिजल्ट्स इन दिस मैजिक जर्नी थ्रू ग्रेटिट्यूड। हेल्थ में हमने बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, फाइनेंसिस में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, एंड आई हैव मेन माई रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो ये सिर्फ 1 महीने की बुक है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड as Dipti has said कि I have my YouTube channel with 800 subscribers and my WhatsApp group personal with 900 participants over there. So जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, जो 30 ईयर्स से जयपुरिया से जुड़े हुए हैं, उनको अब ये नीड ऑफ द आवर है कि हाँ थोड़ा सा पीसफुल और कामनेस में आने के लिए इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। सो नाउ वी विल फॉलो 3-2-1 फॉर्मूला। 3-2-1 फॉर्मूला क्या होता है? 3 में होता है सबसे पहले अफर्मेशन जो हमें फॉलो करना होता है, देन विजुअलाइजेशन सेकंड, एंड थर्ड इज ग्रेटिट्यूड 3। 2 में होता है स्लीप एंड वाटर, एंड 1 में होता है मेडिटेशन। बिकॉज मेडिटेशन इज द टॉप मोस्ट चीज होती है जो जहाँ पे 2 मिनट के लिए भी कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज 3-2-1 फॉर्मूला। सबसे पहले अफर्मेशंस की बात करते हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव सेंटेंस, हमेशा वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद आई। ठीक है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है हमें अफर्मेशन से। इसमें एक फॉर्मूला इफ यू वांट टू जॉट डाउन, IPPRFM। अफर्मेशंस कैसे बनाते हैं? आई से, इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद आई एम अ मनी मैग्नेट, I am fit, fine and healthy. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. All these are affirmations जो हम रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, और वो हमारी लाइफ में उतर जाते हैं। आई एम रॉक स्टार, आप जो बोलोगे वो बनोगे। आई एम अ मनी मैग्नेट। P, ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। इसमें कहीं भी नो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को नो नहीं समझता। यूनिवर्स ओनली टेक्स पॉजिटिव वर्ड्स। अगर आप इसमें नो डालोगे तो वो अफर्मेशन का मतलब चेंज हो जाएगा। अभी इसकी भी एक एक्टिविटी हम करवाते हैं। देन P इज फॉर प्रेजेंट टेंस, इट ऑलवेज शुड बी इन प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन, कि अभी हो रहा है, होगा या हो चुका वो नहीं, अभी प्रेजेंट में होना चाहिए। रेपिटिशन, जब भी हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, अफर्मेशन शुड बी रेपिटेटिव, रेपिटेटिव, रेपिटिशन में हमको इसको बोलते रहना चाहिए। द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन इज इमेंस। जब आप इसकी रेगुलर वे में प्रैक्टिसेस करोगे ना, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे अफर्मेशंस अवेलेबल हैं आपको। देन फीलिंग्स के साथ ही अफर्मेशंस बोलने चाहिए कि यस ये हो चुका है, बिकॉज फीलिंग इज अ फ्यूल। जिस भी चीज में हम फीलिंग्स डालते हैं ना,
वो जरूर आगे बढ़ के आता है। तो इट ऑलवेज हैज गुड फीलिंग्स। If possible, time will permit, I will share feelings chart also here. But the power of positive affirmations is immense. And if अगर हो सके तो इसको मिरर के सामने affirmations को repeat करना चाहिए, क्योंकि mirror work practice is also again a very strong practice. So this was all about affirmations. अभी एक छोटी सी एक्टिविटी और, ये जानने के लिए कि नो कैसे यूनिवर्स नहीं सुनता है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए हम अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचेंगे। सो क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट, और हमें अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है। आप कुछ भी और सोच सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दिस वेबिनार, पार्टिसिपेंट्स, माई सेल्फ, कुछ भी सोचिए, लेकिन अपनी मम्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। Keep a smile on your face because you're thinking so many things. Gently open your eyes. And again, your reactions needed. किसके बारे में सोचा आपने, क्या था 1 मिनट में? वो जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करी, दिमाग में आ ही रहा था। What you are Very told good. not to do, your mind will हाँ, go that thing only. Again, I think it is just like a kid. If you tell somebody to a kid something to a kid कि ये ना ये ड्रॉर मत खोलना, Yeah. तो वो फिर उसके दिमाग में आएगा, नहीं खोलना ही है अब तो, ये मतलब जस्ट टू नो कि इसमें है क्या। It is, I Beautiful. think, Great, Parimal. yeah. Yeah. So very rightly said, where focus goes, energy flows. तो हमें इन्हीं छोटी छोटी चीजों से लेसन लेना है कि कहाँ हमारी फोकस जा रहा है, तो उसकी एनर्जी वहीं फ्लो होगी, है ना। सो इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी में अपनी फोकस मत लेके जाइए, पॉजिटिविटी में रहेंगे। सो वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली सेड। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बहुत होते हैं, लाइक मनी में चाहिए तो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम कैश रिच, पैसों की तो बारिश हो रही है। जब आप लगातार ये सब चीजें बोलते रहेंगे ना, तो एक दिन सच में वो चीजें होने लगती हैं। हेल्थ का है तो आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। नेवर नेवर डिस्कस योर इल हेल्थ विद एनीवन। कहते हैं हम लोगों में कि बस 3 चीजों जनों को अपनी हेल्थ के बारे में बताओ, एक अपने आप को, एक अपने घर में सिर्फ एक जने को, और एक डॉक्टर को। नेवर डिस्कस योर इल हेल्थ विद एनी वन एल्स, क्योंकि वो हमारा बहुत ब्यूटीफुल शरीर है। अगर हम अपने छोटे बच्चों के बारे में बुराई करते हैं तो उनको खराब लगता है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी खराब लगता है। क्योंकि आज हमें सिर में दर्द नहीं है तो हमने किसी को नहीं बताया कि आज तो मैं बिल्कुल परफेक्ट, फिट, फाइन एंड हेल्दी हूँ। लेकिन किसी दिन सिर में दर्द है ना, तो सब फ्रेंड्स को, मम्मी को, सबको फोन करके बताते हैं, अरे आज तो बहुत परेशानी हो गई। वो आपके हेल्थ पे आता है। जो भी डिजीज है उसको अवॉइड करो, वो खुद ही सही हो जाएगी। हाँ, और एक और बात, सीक्रेट मूवी देखिएगा अगर हो सके तो, 90 मिनट्स की। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन हिंदी एंड इंग्लिश। उसमें ऐसे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लोगों ने अपने कैंसर तक भी उससे ठीक करे हैं। ठीक है, इट्स वेरी नाइस मूवी। आपको उससे बहुत ज्यादा चीजें पता चलेंगी, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। नाउ ग्रेटिट्यूड की अगर बात करें तो धन्यवाद देना, इसको हम लोग कहते हैं कि पीपीएफ में दिया जाता है। पहले पास्ट का, फिर प्रेजेंट का, एंड देन फ्यूचर के बारे में हमें जो भी चीजें मैनिफेस्ट करनी है हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड कभी हमने अपनी बॉडी का करा है क्या? इतनी सुंदर भगवान ने हमें करोड़ों की बॉडी दी है, सारे अंग चल रहे हैं, इस एज तक भी 50 60 जितने की भी, हमें 40 30। तो कभी भी हमने अपनी आंखों का धन्यवाद करा है कि हम इतनी सुंदर दुनिया देख पा रहे हैं? शायद नहीं। इतनी अच्छी हवा हमें मिल रही है जिससे हम सांस ले पा रहे हैं। एक और एक्टिविटी इसी बात पे, अपनी नाक को दोनों उंगलियों से बंद करेंगे, मुंह को भी बंद कर लेंगे, और ऑन माई काउंट, आप अपने काउंट पे जहां तक आप सांस ले सको लीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा अपने आप से। ठीक है, तो क्लोज योर नोज, दोनों उंगलियों से अपनी नाक बंद करेंगे, मुंह भी बंद करेंगे, एंड ब्रीथ नॉर्मल सिंपल ऐसे। यस, स्टार्ट। 1
टाइटली बंद करिएगा, मूविंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Leave it. कैसा लगा? किस नंबर तक आप सांस रोक पाए? 20, but it हाँ। was 16. suffocating. It was difficult. वेरी नाइस दीप्ति, 2016, वेरी नाइस निधि। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो एयर हमें फ्री में मिल रही है हर समय, क्या हमने उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड करा है? और 4 साल पहले वो कंडीशन सबने देखी है जब ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे बिक रहे थे। यस और नो? सो दिस इज द अवेयरनेस वेबिनार की, लाइक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमने कभी ध्यान नहीं दी हैं, एंड दीज आर येट सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना ही चाहिए। सो यहाँ पे बात आती है 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड करने की। व्हाट आर 5 एलिमेंट्स? पंच तत्व जिन्हें कहते हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, तो एयर का तो अभी आपने सामने सामने देख लिया कि क्यों हमें हवा का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर समय मिल रही है, 24/7 मिल रही है, और हम उसी से जिंदा हैं, तो हवा का ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। देन वाटर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो जल कहते हैं सेकेंड पंच तत्व में से आता है। तो वाटर के लिए 4 लाइनें कही गई हैं। वाटर इज लाइफ, वाटर इज एनर्जी, वाटर हैज मैजिक, वाटर हैज मेमोरी। पानी में मेमोरी होती है। कहते हैं कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी, आप लोग ये सब चीजें लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू गूगल इट, और यूट्यूब में बाद में इसमें देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, पानी का ग्लास हाथ में लेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे जो भी चीज आप अपने सपने कि आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, उस पानी को धीरे धीरे सिप करके पियोगे तो आपकी चीजें पूरी होने लगेंगी। यू विल मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स। पानी में इतनी मेमोरी, इतनी एनर्जी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा पूर्णमासी के दिन हम लोग क्योंकि बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, तो वाटर की जो ज्वार भाटाएं आती हैं और मून के साथ जो एनर्जीज हमारी सिंक्रोनाइज होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन मेडिटेशन करो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में रखो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का पानी उस मून की एनर्जीज के साथ वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो एक जापानीज साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर को लेके, वाटर हैज मेमोरी पे बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी हम वाटर को बोलते हैं वो उसकी मेमोरी बन जाती है, एंड पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पानी का स्ट्रक्चर अगर आप उसको बोलोगे आई लव यू, आई लव यू, तो बहुत सुंदर फ्लोरल इसमें आ जाता है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट, यू कैन चेक इट इन गूगल ऑल्सो। मसारो इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट है, जब उन्होंने फर्स्ट वन दिस इज थैंक यू बोला पानी को ग्लास में लेके, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया वाटर के शेप में। फिर जब उन्होंने उसको विजडम बोला तो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, ट्रूथ बोला तो भी एक फ्लोरल शेप में बना। लेकिन नीचे देखिए जब उन्होंने उसको एविल बोला, पोल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर करा, लास्ट वाले देखिए पोल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर करा, तो वाटर का स्ट्रक्चर बराबर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट होता चला जा रहा है। उसी तरह से अगर हम पानी को प्रेयर करके पियेंगे, उसको मैनिफेस्ट करके पियेंगे, तो वो हमारी मेमोरी हो जाती है और वो मैजिक क्रिएट करता है। this is scientific and very important things I'm telling you. So water has memory. हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई गुस्से में तो हम लोग कहते हैं ना पानी पी लो पानी पी लो, वो नहीं करना है, क्योंकि वो गुस्सा उसके साथ और अंदर चला जाता है। तो हमेशा पानी में एनर्जी होती है, मेमोरी होती है। वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज मैजिक, पानी में जादू होते हैं। जब भी हम पानी को अंदर पियेंगे बहुत ही आराम से, बहुत कूलली पियेंगे। ठीक है, नाउ द फास्टेस्ट वे टू अचीव योर ड्रीम इज बीइंग हैप्पी नाउ। जब आपको सपने पूरे करने हैं और उसका बढ़िया सा रास्ता तय करना है कि बहुत फास्ट वे में हो जाए, तो आपको हैप्पी अभी होना है। मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रेटिट्यूड। जब भी कोई अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए ना, तो हमें ग्रेटिट्यूड का साथ हमेशा रखना है। मतलब हम लोग तो यहाँ पे बॉम्बे में तो हमने सुना है कि ये जो मुकेश अंबानी जी हैं, इनके 24/7 ग्रेटिट्यूड चैंटिंग होती रहती है। जब गुजरात में वो भूकंप आया था, सुनामी आए थे जो भी, तब भी उनके यहाँ 24/7 ग्रेटिट्यूड चैंटिंग हो रही थी। तो जितने भी ये बड़े लोग हैं ना, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट पीपल, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, ये सभी ग्रेटिट्यूड करते हैं बहुत, एंड दे बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्लम डॉग मिलेनियर की हीरोइन थी ना वो, तो उसको ऑस्कर इसीलिए मिला था, वो सिर्फ एक मूवी में आई एंड ऑस्कर लेके चली गई बिकॉज शी हैज मैनिफेस्टेड दैट ऑस्कर अवार्ड, फ्रीदा पिंटो।
एंड यू कैन वेरी वेल सर्च फॉर अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, ये सभी जितने भी एक्टर्स हैं ना, दे बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, संकल्प से सिद्धि, जो हम बोलते हैं वो होता है। थ्री इडियट्स मूवी इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वहां पे जो बोलता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और रात को जो वो होता है उसका वॉचमैन, उसको पता चलता है, दिखाई भी नहीं दे रहा, बट वो बोल रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो सब लोग आराम से सो रहे हैं, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। So, a secret movie, when you will watch, you will see three words there: ask, believe, and receive. पहले मांगेंगे, विश्वास करेंगे और मिलेगा। तो इसके लिए बताते हैं आपको, एक बार एक जगह बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था, तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू प्रेयर। तो करीब 1000 लोग वहां पे जाते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान से, ऐसे ऊपर देख के कि भगवान पानी दे दीजिए, बारिश दे दीजिए। बट उसमें सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो छाता लेके जाता है, अम्ब्रेला लेके। उसको इतना इमेंस बिलीव होता है यूनिवर्स में, गॉड में, कि बारिश तो हो ही जाएगी। सो इतना बिलीव करना है, आस्क करना है, पूछा उसने मांगा, बिलीव करा एंड देन रिसीव करा। इतना विश्वास करना है कि चीजें तो पूरी होंगी होंगी। 1000 में से एक ही बच्चा था जो छाता लेके गया था। ठीक है। नाउ व्हेन वी से आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, हमारे शब्द ही हमारी। तो आजकल बहुत ज्यादा चला है नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ही चला है नो वरीज, जबकि नो और प्रॉब्लम दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। वर्ड्स इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वी कैन से थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसमें थैंक यू भी आ गया और अंडरस्टैंडिंग भी आ गया। अगर कोई वेट कर रहा है आपका कहीं पे एंड यू आर लेट फॉर 5 मिनट्स, सो वी से सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो गया, लेट हो गया। इट शोज दैट यू आर फीलिंग गिल्टी, अपने आप को हम गिल्ट महसूस करा रहे हैं, विच इज नॉट गुड ऑल द टाइम। सो वी हैव टू चेंज दैट इनटू थैंक यू, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। सॉरी को हमने थैंक यू में चेंज कर दिया, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी गुड। सो हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि एक बार जो शब्द बाहर निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। एंड आवर माइंड हैज इमेंस पावर टू कनेक्ट विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। हमारे ब्रेन में, माइंड में वो शक्ति है कि हम यूनिवर्स की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और भगवान से डायरेक्ट आंसर्स मांग सकते हैं। जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस होता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी एनर्जीज को इतना अलाइन कर देगा यूनिवर्स के साथ कि हमें इंट्यूशंस होते हैं और सिक्स सेंस होके हमें सब चीजों के अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सो आप रात को जब आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हो, सोने वाले हो लेकिन सोए नहीं हैं, तब यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। कई बार कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले, जब आपने बिस्तर नहीं छोड़ा है बट यू आर अवेक, आंसर मिलेगा। और जो वो आंसर मिलेगा उसको आपको मानना होगा, बिकॉज वो आंसर दिल से आया होता है, दिमाग से नहीं आया होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा रात भर उठा रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ग्रेटिट्यूड करके सोगे, तो वो आपको जरूर अच्छे आंसर्स देगा और उन आंसर्स को आपको मानना होगा और आप देखोगे कि उसमें आपका फायदा होता है। तो क्या है ना कि दिल की सुननी चाहिए हमेशा, दिमाग की नहीं, क्योंकि दिमाग तो मैनिपुलेट करता है। कई बार कंफ्यूजन होता है और सच में आई एम इनटू दिस प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं समझ में नहीं आता क्या ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना, किस कॉलेज में एडमिशन लें, इसमें लें, इसमें लें, ये करें या नहीं करें। वो क्वेश्चन आप से यूनिवर्स से रात को पूछ के सो जाओ, सुबह सुबह आपके माइंड में जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। और इसके लिए एक बहुत अच्छा ये है, अफर्मेशन है, माई माइंड इज अलाइंड विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। माई माइंड इज अलाइंड विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अपने आप को इतनी वैल्यू करिए, अपने माइंड को इतना थैंक यू करें कि वो सारे आंसर्स हमें सही से बताएगा ही बताएगा। और नोट्स बना लीजिए टू रीकैप। कई बार ना हम लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाते, टाइम नहीं होता, लेकिन साथ साथ अगर कुछ लिखा होता है तो उसको फिर से पढ़ सकते हैं। वॉट यू स्पीक यू क्रिएट, यूनिवर्सेस तथास्तु। आप जो भी बोलोगे, वो कहते नहीं है, अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स गए, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो नहीं तो फेल हो जाएगा कि कहने की जगह हम ये भी कह सकते हैं ना कि पढ़ लो तो 95% मार्क्स आ जाएंगे। तो यूनिवर्स कहते हैं तथास्तु,
जो आप बोलोगे वो होगा, तो आ जाएंगे। सचमुच लोगों ने ऐसी शेयरिंग्स करी हैं कि जो बच्चे 60% पे थे, दे हैव गॉट 90% अबव 90 इन 10th एंड 12th। सो होती हैं ये सब चीजें, और चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। बस वही है कि बॉयज बिलीव इन लॉजिक्स एंड गर्ल्स बिलीव इन मैजिक्स। तो इस तरह के सेशंस में हमारी लेडीज ज्यादा बैठी रहती हैं, क्योंकि लेडीज, गर्ल्स बिलीव इन मैजिक्स, और जेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है मैजिक में आने के लिए। दे डू बिलीव इन लॉजिक मोर। हमेशा सपने देखना, बड़े सपने देखना, क्योंकि बड़े सपने ही पूरे होते हैं। और अपने बड़े सपने उन्हीं लोगों से शेयर करना जो बड़े सपनों में बिलीव करते हैं। तो एक बार एक से पूछा गया कि बहुत ही रिच पीपल थे, दो लोगों से पूछा गया आप BMW कब तक खरीद सकते हो। तो एक ने बोला मुझे तो 5 साल लग जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा क्रंच है, पैसे का फाइनेंशियल चैलेंज है, मुझे 5 साल लग जाएंगे। तो बोला ठीक है। उससे भी बड़ा रिच पीपल था, उससे पूछा आप BMW कब तक खरीद सकते हो। तो बोला कि सोचा उसने थोड़ा, बोला 10 साल तो लगेंगे BMW खरीदने में। बोला क्यों, आप तो इतने प्रॉस्पेरस रिच आदमी, आपको BMW में 10 साल क्यों लगेंगे। बोला BMW कंपनी खरीदने में 10 साल तो लगेंगे ही ना। सो थिंक बिग, उसने BMW कंपनी के बारे में सोचा, नॉट ओनली द कार। इसलिए हमेशा आप सपने देखते रहना, बड़े सपने देखना। वही कलाम साहब ने बोला ना कि सपने वो नहीं जो आपको सोने नहीं देते, सपने तो वो हैं हाँ जो आपको सोने नहीं देते। जो सोते हुए देखे जाए वो नहीं, जो सोने नहीं देते वो सपने आपके, ठीक है। तो चलिए फिर से इस बात पे अपनी पावर, जो हमने BMW की कहानी सुनाई, उस पर फिर से एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक पेपर ले लीजिए, पेपर एंड पेन, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी से ले आइए। देन हमें करना क्या है, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, और हमें बहुत छोटे छोटे से सर्कल सर्कल बनाने हैं टू नो योर पावर। तो आप पहले अपने आप को एक इवेल्युएट करके नंबर दे लीजिए। आई विल ड्रॉ 50 सर्कल्स इन 30 सेकेंड्स। तो आप सभी अपने आप को एक नंबर दे लीजिए कि हम 30 सेकेंड्स में कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से सर्कल्स, एंड देन काउंट एंड ड्रॉ। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स में छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। पहले अपने आप को नंबर दे लीजिए कि आई विल ड्रॉ 50, 100, जितने भी सर्कल्स यू कैन इजीली ड्रॉ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। So now share what you have written before the activity and how much you have drawn. Thought of 100, but I managed 90. Okay, okay, very good. Anyone else? I thought of 60, so I did 65. Very nice. Yes, I anyone else? thought 70 I thought of and 50 draw and I did 100. 56. Very good. वेरी गुड। तो जनरली इट हैपेंस कि हम अपनी पावर को ना कम आंकते हैं, इवेल्युएट हम अपना कम करते हैं। तो हम सोचते हैं 40-50 इज मोर देन इनफ, बट जब हम काम करने चाहते हैं तो बहुत कुछ कर पाते हैं। सो ऑलवेज बी पावरफुल, इवेल्युएट योरसेल्फ कि मैं अपनी पोटेंशियल से ज्यादा ही कर सकता हूँ। बी इफेक्टिव, बी पोटेंशियल ऑलवेज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ द मोस्ट पावरफुल इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट टूल टू मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स। कहते हैं कि जो इमेजिन कर सकते हैं वही पा सकते हैं। वॉट यू कैन इमेजिन यू कैन अचीव। दिस इज वेरी वेरी नाइस। हाउ टू विजुलाइज, विजुलाइजेशन टेक्निक्स। इसमें कुछ 5 स्टेप्स होते हैं विजुलाइजेशन में, और आजकल ये बहुत ज्यादा चला है। आप सोचो, जिसने राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाया था तो उन्होंने इमेजिन करा होगा ना पहले उसको बनाने के लिए। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जब हम लेडीज किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं तो पहले हम सोचते हैं ना कि क्या बनाना है, क्या करना है। सो इमेजिनेशन, आइंस्टाइन ने भी बोला है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, बिकॉज नॉलेज विल टेक यू फ्रॉम A to B, while imagination will take you around the world. अभी हम यहाँ पे बैठ के सोच सकते हैं ना कि हम पेरिस में एफिल टावर पे खड़े हैं। यस, दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। और
अभी हम यूरोप में ज़ुंफ्रू में हैं, वो चांदनी की तरह येलो प्लेन से साड़ी पहने हुए घूम रहे हैं. सो इमेजिनेशन कैन टेक यू अराउंड द वर्ल्ड. तो इमेजिनेशन में इतनी ज्यादा पावर है. डाउनलोड का बटन दबा दे तो अंदर है दे पड़े हुए Whatever you can imagine, you can create. Whatever you can imagine, you can create. जो भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो हम क्रिएट कर सकते हैं. सो वी ऑल हैव द पावर टू विजुलाइज. सभी के अंदर वो पावर होती है, बस हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम बैठ के उसके बारे में सोचें. लेकिन आपको कुछ भी करना है. अभी दीप्ति का एग्जाम्पल है, अगर इन्होंने IIM इंदौर से करा जो कोर्स, तो विजुलाइज करिए अगर इसको बैठ के ना, तो बहुत ही मजा आएगा कि वाओ सच में हो चुका मेरा कोर्स कंप्लीट. एंड आई एम सो हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग एंड विद जॉयफुल विद माई फैमिली. सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन दीप्ति फॉर दैट. या सो विजुलाइज करने के लिए आप कुछ भी, किसी की शादी है, किसी को कहीं पे सक्सेस चाहिए, है ना, आप बैठे बैठे विजुलाइज कर सकते हो. वी हैव सेलिब्रेटेड आवर सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी हियर इन ताज मुंबई. सो आई हैव विजुलाइज्ड एवरीथिंग फॉर दैट एंड ऑल थिंग्स वर गॉन एज आई हैव विजुलाइज्ड. जैसा जैसा हमने सब चीजें, है ना, सभी कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हाउएवर आई हैव विजुलाइज्ड, आई हैव अट्रैक्टेड दैट. एंड नेवर चेज योर ड्रीम्स, अट्रैक्ट योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स को चेज मत करना, उनको अट्रैक्ट करना. बैठे बैठे वो आपके पास आएंगे. यू नो नीड टू चेज योर ड्रीम्स. सो विजुलाइजेशन के 5 स्टेप्स बोले तो इसमें होता है सबसे पहले स्क्रिप्टिंग और विजुलाइजेशन. फर्स्ट इज स्क्रिप्टिंग, लिखना. जो आपको लिखना होता है कि व्हाट इज माय ड्रीम. देन सेकंड होता है उसको बोलना. जो भी हमने लिखा है उसको बोलना, पढ़ना. फर्स्ट इज राइटिंग, सेकंड इज वर्बल, थर्ड इज सुनना. जो आप बोल रहे हो उसको सुनना, ऑडियो बना के सुनना. देन फोर्थ इज उसको देखना, विजुअलाइज करना. एंड फिफ्थ इज विजुअलाइजेशन, अक्सर उसके बारे में सोचना. सो दिस इज विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स. इसमें विजन बोर्ड बनाना भी आता है, दैट इज एन एडवांस प्रैक्टिस. और विजुअलाइजेशन में ऑलवेज इंक्लूड योर 5 सेंसेस. तो वी विल डू विजुअलाइजेशन हियर नाउ. एक छोटा सा हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे एंड देन आई वांट योर रिएक्शंस. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कैसा रहा. आर यू रेडी फॉर द विजुअलाइजेशन? 2-3 मिनट्स का छोटा सा. यस. सो सिट स्ट्रेट, अपनी आंखें बंद कर लेंगे. क्लोज योर आईज. टेक डीप ब्रीथ. 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे. एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को. Have a great smile on your face because summer vacations हैं, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं and we are planning to go to a sea beach. बहुत हल्का फील करिए अपने आप को, बहुत रिलैक्स, काम. अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और इतना हंसी से खुशी से विजुलाइज करेंगे. यू विल बी देयर ऑन दैट बीच नाउ. वाओ वाओ वाओ. आई एम सो हैप्पी and grateful that we are planning a holiday with my kids, with my husband and wife to a sea beach. बहुत अच्छा लग रहा है समर वेकेशंस में सी बीच पे जाना. हम सभी ने खुशी खुशी बहुत पैकिंग करी, प्लान्स बनाए, ट्रैवलिंग टिकट्स बुक कर लिए हैं. सभी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हो गए हैं. वी हैव प्लान्ड आवर हॉलीडेज टू द बेस्ट. वाह, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. फील योरसेल्फ लाइटर. आई एम वेरी हैप्पी. समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं. सनराइज का समय है, मॉर्निंग 5:30 AM. सूरज की गोल्डन किरणें समुद्र के पानी पे पड़ रही हैं. हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत.
मैं बच्चों के साथ पानी में जा रही हूँ। वाह, ठंडा ठंडा पानी। फील द कूलनेस ऑफ ब्रीथ वाटर एंड द ब्रीज, जो हवा वहां बह रही है आपकी स्किन को टच कर रही है। बाल उड़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कब से प्लान करी थी ना ये छुट्टियां, वेकेशंस। अब विद फैमिली वी आर हियर। दूर से एक बहुत बड़ा शिप आता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे आपकी तरफ आता रहा जा रहा है। बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, उसके डेक पे लोग डांस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ब्यूटीफुल सीन। शिप का हॉर्न हमें सुनाई दे रहा है। पों पों, पों पों। And I'm so happy, so happy to see all these things. Wow, wow, wow. बीच रिसोर्ट से खाने की खुशबुएं आ रही हैं। एंड वी विल हैव ब्रेकफास्ट नाउ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कब से मेरा मन था बहुत सुंदर से सी बीच पे जाने का। ब्लू ब्लू पानी, बहुत अच्छा साफ सुथरा। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मा कम ना, मम्मा आओ इधर आओ, अंदर चलेंगे और सी बीच में पानी में अंदर और थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, वाटर एक्टिविटीज भी हैं, एंड वेरी पीसफुल, serene, calm. Thank you for the rejuvenation, universe. Thank you for the pleasant holidays. Thank you. Thank you. Thank you. Long deep breath लेंगे and beautiful smile on your face. Whenever you feel comfortable, you may open your eyes with a gentle smile on your face. Now, once again, share who can connect with the visualization and how did you feel? कोई कनेक्ट कर पाए विजुअलाइजेशन से? Almost at the beach. पहुंच पाए सी बीच पे, गोल्डन रोशनी देख पाए सन की। सो दिस इज हाउ विजुअलाइजेशन इज डन। अपने 5 सेंसेस को भी इंक्लूड करना है। अभी हो सकता है आपके लिए पहली बार हो तो उतना कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, बट व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर ड्रीम तो आप उससे ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट भी कर पाते हैं। और लगता है कि सच में ये जो भी चीज चाहिए आपको, नॉट ओनली ट्रेवलिंग, टूरिंग, घूमना घामना पढ़ना, जो भी चीज चाहिए आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इवन अ गुड हेल्थ, इवन अ गुड हेल्थ, जो भी मान लीजिए कुछ हेल्थ में चैलेंजेस है, ब्रेक डाउन है, एंड वी हैव टू विजुअलाइज दैट इट इज फिट, फाइन एंड हेल्दी। आई हैव ट्रीटेड माई सेल्फ बाय डूइंग 3 months कंटिन्यूअस विजुअलाइजेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस, एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करी थी हमने 8 minutes की, एंड आई हैव परफेक्टली मतलब आई हैव गॉट दैट रिजल्ट्स व्हिच आई वांटेड। दीप्ति, आई वांट टू से समथिंग, you have raised your hand. Okay. I just asked, you said don't chase, attract. So what is the difference between attracting, okay, but why not chase is something that I can't understand. Yes, yes. So when we dream ना, we do not have attached with our dreams. हमें अपने ड्रीम्स को सरेंडर कर देना है। We have to surrender. अगर हम उन ड्रीम से अटैच हो जाते हैं तो वो मिलने में टफनेस आ जाती है। ठीक है, तो हमको उसको चेज नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है, उसको अट्रैक्ट करना है बाय ऑल दीज टेक्निक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा बोलने से, अच्छा फील करने से, विजुअलाइजेशन से, ग्रेटिट्यूड से वी हैव टू अट्रैक्ट। चेज नहीं करना, उसके पीछे पीछे भागना नहीं है कि वो मिलेगी कैसे, नहीं है ना, गलत चीजें नहीं, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स उसमें नहीं डालनी है। वी हैव टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स। Okay. 3-2 का 1 फॉर्मूला, तो 3 ये हो गई चीजें। देन 2 स्लीप एंड वाटर, 2 जो चीजें थी वो स्लीप एंड वाटर। तो स्लीप में ये कहते हैं कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वन नोज की 8 to 10 hours की स्लीप रोज चाहिए हमें। क्योंकि स्लीप में क्या होता है ना, 20% कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है, और 80% जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो रेगुलेट करता है, जो हमारी हर चीजों को कंट्रोल करता है, वो उस टाइम उठा रहता है। तो हम जो भी चीजें मांगते हैं वो रात को ही पूरी होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा उन चीजों पे काम करता है।
इसीलिए कहते हैं कि डू फीड गुड थिंग्स ऑलवेज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। कभी भी कोई गंदी चीजों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं भरना है। और रात में जब आप सो रहे हो तो अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके सोओगे, और सुबह फिर हम लोग इसमें करते हैं काउंट माई ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग, तो वो 24 आवर्स की साइकिल हो जाती है। आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड बोथ involved in gratitude, and when we are gratitude then we cannot be in negative energy। कहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी साथ साथ नहीं रह सकती। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज दूर रहती हैं। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी इन ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एनर्जीज। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे एनर्जी का खेल है। अब देख लिया वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दैट इज ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आपके पास नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। एंड वाटर का हमने बताया 2 में कि वाटर इज बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लाइक यू कैन मैनिफेस्ट एनी ड्रीम, संकल्प से सिद्धि। पानी को अफर्मेशन दे के पियेंगे आप, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, धीरे धीरे देखोगे आप फिट फाइन एंड हेल्दी होते चले जाओगे, क्योंकि पानी में मेमोरी है। तो जो भी हम पानी को बोल के पियेंगे वो हमारे शरीर में जाके मेमोरी बन जाएगा। तो इसमें ये भी होता है कि आप हमने तो एक्वागार्ड पे भी लगा रखा है इस तरह की चीजें, कुछ जो है हमने पानी के 4 चीजें पहले बोली, या कांच की बोतल पे लोग बना के लिख लेते हैं जो भी उनको चाहिए वो चीजें की, है ना, माई आइडियल बॉडी 70 kgs, जो भी आपको चाहिए, क्योंकि वो जब भी आप वो पानी पी रहे हो वो आप अफर्मेशन करके अंदर ले रहे हो। एंड जब उसमें मेमोरी है, आप लोग ये मसारा मोएटो का जरूर से एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना, देन यू विल मोर अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से एक राइस एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें भी पानी डाल के हम रखते हैं 21 डेज के लिए, और एक बॉटल को हम कहते हैं आई लव यू, दूसरे को बोलते हैं हम आई हेट यू, एंड तीसरे को हम नेग्लेक्ट फील करा देते हैं। तो जो आई लव यू वाला राइस होता है वो 21 डेज बाद एज इट इज व्हाइट कलर का चमकदार राइस रहता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है एंड पानी में मेमोरी होती है। दिस ऑल्सो यू कैन सी चेक इन यूट्यूब। एंड द लास्ट वन इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो आजकल बहुत ज्यादा चला है, लोग पूछते भी हैं कि मुझसे तो मेडिटेट नहीं करा जाता, क्या करें। तो उसके लिए है कि स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। जब आप ऑफिस में बैठे हो ना, जब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंख बंद कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। क्योंकि आंखों से हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो वी आर इन टू मेडिटेशन स्टेज। इसलिए अगर आप 2 मिनट आंखें बंद करके भी बैठे हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेशन। उसके बाद अपने थॉट्स पे, विचारों पे काम करते हैं। तो जब थॉट्स हमारे अच्छे होने लगते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। एंड मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस अगर कहें तो वही है कि सभी को पता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस आवर रिलेशनशिप, इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, रेगुलेट्स आवर मूड मूड है ना, फास्टर हीलिंग करता है, हेल्प्स टू स्टे फोकस। तो इस तरह के मेडिटेशन से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इफ पॉसिबल आप लोग 2-3 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट करिए, तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स कैसे जल्दी आने लगते हैं। और कहते हैं कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में तो मेडिटेशन इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई डू मेडिटेट एवरी डे फॉर 30 मिनट्स, एंड आई हैव स्टार्टेड विथ 5 मिनट्स। और कहते हैं कि जब मेडिटेशन कोई काम की तरह ना लगे तो वो एकदम चरम सीमा जिसे कहते हैं ना, एकदम टॉप मोस्ट स्टेज पे आप आ जाते हो। जब यू आर नॉट डेलिबरेटली मेडिटेटिंग, खुद ही से हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, अनगाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड वन मोर थिंग, जब आप लोग अपना टाइम इतना यहाँ पे लगा के बैठे हुए हो, तो वन एंड द लास्ट एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर से एक बार पेन पेपर ले लेते हैं। एंड यू हैव टू ड्रॉ 2 इंच का एक सर्कल बनाइए, डायमीटर का, 2 इंच डायमीटर का। इट्स वेरी जनरल एक्टिविटी है, बट हम बनाने के लिए बता रहे हैं। 1 मिनट हम अपना सी लाइक दिस, एक सर्कल ऐसे बनाइए 2 इंच डायमीटर का। उसके बाहर एक और सर्कल ऐसे बनाइए, एंड देन द थर्ड एंड द लास्ट सर्कल लाइक दिस। तो नाउ बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे अंदर वाला जो सर्कल, फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करा है, उसमें यू हैव टू राइट 1 नेम जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो,
and he is the most lovable person in the world for you. Only one name you have to write, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा प्यार उसे करते हो, एक नाम लिख लीजिएगा। नाम मतलब नाम इन द सेंस पापा मम्मी, जो भी आप बच्चों को जिस नाम से बुलाते हो, जैसे भी। डन। देन नेक्स्ट वाला सर्कल जो है, सेकंड सर्कल उसके बाहर वाला, उसमें दो ऐसे नाम लिखिएगा कि फर्स्ट वाले से कम उसको थोड़ा सा लेवल पे रख के प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। दो नाम ऐसे लिख लीजिएगा। एंड देन थर्ड एंड द लास्ट सर्कल में तीन नाम सेम ऐसे ही कि उसके बाद वाले लेवल पे वो तीन लोग आते हैं जिनके लिए अगेन आप कुछ भी कर सकते हो, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। डन। सो एवरीवन हैज गॉट 6 नेम्स, है ना? टोटल 6 नाम हो गए, 6 नाम हो गए। तो अगर हो गए तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी, पैट योरसेल्फ कि वी हैव 6 पीपल अराउंड अस जिनका हम केयर करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे 6 लोग हमारे आसपास हैं। वी हैव अराउंड 6 पीपल। वेरी नाइस। नाउ टेल मी व्हाट यू हैव रिटन। इनर मोस्ट सर्कल में आपने क्या लिखा है, सबसे अंदर वाले सर्कल में? यू कैन रेज योर हैंड एंड से my son's name. माई सन्स। वेरी नाइस। आप अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बहुत बढ़िया जी। और सेम। सन, बेटा। बच्चों के लिए तो माँ ना जान भी दे देती है, माँ बाप दोनों, है ना? पूरी दुनिया उनके लिए लुटा देंगे। बिल्कुल वो धम माता, बिल्कुल भारत माता। हाँ, नेक्स्ट। या एनीवन एल्स? बच्चे कम बच्चे, इन दी इनर। हाँ, सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, वही बोल रहे हैं ना, कुछ भी कर देंगे ना उनके लिए। इसीलिए हमने सबसे पहले बोला सोर्स रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो दो मम्मी पापा हमारे भी ऐसे हैं जो हमारे लिए हमेशा ब्लेसिंग्स करेंगे, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो ही आप सबने भी करा है। वेरी गुड। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? सो यहाँ पे आता है इनर सर्कल में आपको लिखना है माई सेल्फ, क्योंकि हमें अपने आप को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब अपना घड़ा भरा होगा तभी हम किसी और को कुछ दे पाएंगे। आज तक हमने कभी भी नहीं करा लव माई सेल्फ। इसी पे एक और लुई है की बुक है, लव माई सेल्फ, खुद से प्रेम करो, है ना? तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखेंगे, लविंग माई सेल्फ करेंगे, अपने आप को सब कुछ देंगे, पैम्पर माई सेल्फ करेंगे, जो चाहिए समय भी देंगे, मी टाइम भी देंगे, खाना पीना जो चाहिए सब कुछ देंगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर, लव योर सेल्फ फर्स्ट। एंड ये वो नहीं है जो लोग कहते हैं ना सेल्फिशनेस हो गया फिर तो, ये अपने बारे में ही सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे, जब हम अपने लिए रेस्पेक्ट करेंगे, टाइम निकालेंगे, तभी हम दूसरों को कुछ दे भी पाएंगे, और तभी दूसरे भी हमारी वैल्यू करेंगे। सो वंस अगेन देयर इज मिरर वर्क बुक, एक है वहां पे, लुई हे की बुक है, बहुत ही बढ़िया है, स्वयं से प्रेम करें। अगेन 21 दिन की बुक है वो, 21 डेज की, वो जरूर करनी होगी अपने अंदर से सब कुछ निकालने करने के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए, जो हमने कभी भी सोचा ही नहीं था। इसीलिए हमने एक्टिविटी कराई। सब लोग अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चे आ गए आजकल ज्यादा, नहीं तो पहले हम लोग हस्बैंड वाइफ लिखते थे। जब हमने करा था 4 साल पहले तो हमने हस्बैंड ही लिखा था। अब सारे बच्चे, चलिए बहुत ही बढ़िया, यू आर वेरी वंडरफुल पेरेंट्स, बहुत अच्छे मम्मी पापा हो आप लोग, बट अपने आप को भी प्यार करेंगे, ठीक है? नाउ द लास्ट थिंग, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें और थी, लेकिन लास्ट थिंग कि फॉरगिवनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट यू सक्सेस। जो भी हमारे अंदर बीमारियां होती है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां भी, कैंसर है, कुछ भी है, तो हमने कोई ना कोई कोयला अपने हाथ में लेके अपने दिल में दबा रखा है, दूसरों को फॉरगिव नहीं करा है। तो फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग्स। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है हीलिंग्स के लिए, सब तरह की हीलिंग्स, हेल्थ की, किसी भी चीज की। अक्सर ये बोला जाता है जिन जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं ना, उनके अंदर फॉरगिवनेस नहीं होती है। एंड फॉरगिवनेस 3 तरह से करी जाती है। अपने आप को फॉरगिव करना, forgive yourself, forgive second, forgive others, and seeking forgiveness, तीसरा लोगों से क्षमा मांगना।
क्योंकि कहते हैं ना सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो, तो जान के सॉरी मत बोलो, मन नहीं है तो भी मत बोलो, लेकिन सॉरी फीलिंग्स के साथ आना चाहिए। और हमारे अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं कि जो हमें अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें हमने अपने अंदर ऐसी भर रखी हैं जो हम उसको हम ना एक्सेप्ट ही नहीं करते कि सचमुच हमें अपने आप को इसके लिए फॉरगिव करना है। तो फर्स्ट वन इज फॉरगिव योरसेल्फ। सेकंड, दूसरों को माफ करना। हमने ना कोयले की तरह अपने अंदर चीजें लेके भर रखी हैं कि नहीं, मैं उसको तो मैं माफ करूंगा ही नहीं, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसने इतनी बड़ी गलती करी है ना, हाउ कैन आई फॉरगिव हिम और हर। तो इसलिए दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फॉरगिव अदर्स। एंड देन सीकिंग फॉरगिवनेस, दूसरे से माफी मांगना। बहुत कॉमन सी बात है, जब अपने घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, है ना, उसकी गलती थी, उसको सॉरी बोलना चाहिए। तो सीकिंग फॉरगिवनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरगिवनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। देन आता है गिविंग की बात। अगर छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स और, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो गिविंग में अगर है तो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, मैं क्या दूं। सो यू कैन गिव योर टाइम। आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने मम्मा पापा को टाइम नहीं दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, दे हैव एवरीथिंग, उनके पास पैसा है, घर है, सब चाहिए, लेकिन बस उनको हमारा समय चाहिए, थोड़ी देर कोई मेरी बात सुन ले, मुझसे बात कर ले। कोई अपना टाइम किसी को दे देना, हस्बैंड भी वाइफ को, मोबाइल छोड़ के, तो वो भी गिविंग होता है। टाइम दे सकते हो आप, मनी दे सकते हो, क्लोथ्स, अप्रिसिएशन दे सकते हो ना किसी को भी। रोज ये रूल बना लो कि 2-3 लोगों को तो आई विल अप्रिशिएट। आज तो तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है ना, मुझे तुम्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। मेड आई तो उसको बोल दिया, अरे आज तो तुम टाइम से आ गई। तो अप्रिशिएशन दे सकते हैं हम किसी को, नॉलेज दे सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग नॉलेज एंड टाइम, अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो भी है वो दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए अफर्मेशन से, एंड वी कैन गिव टाइम एंड नॉलेज। तो सभी को दे सकते हैं ना, अपने पास जो होता है हम लोग ये बिना सोचे कि अरे उसको भी पता चल जाएगा, उसके भी सपने पूरे हो जाएंगे, वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स ने सबके पास भर भर के है सब कुछ। ऐसा नहीं कि एक के पास BMW आ गई तो दूसरे के पास नहीं हो सकती, है ना, मांग के तो देखो सब कुछ मिलेगा। So this was all about from my side, and gratitude is the only key to manifest all my dreams. जो भी सपने हमारे पूरे हुए हैं, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हमेशा पकड़ के रखना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। And visualization is the best tool and technique to manifest all my dreams. उसमें फिर ये भी याद रखिएगा कि हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। वो अमिताभ बच्चन जी के पापा जी ने बोला है ना कि नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी का हो रहा है, तो इसलिए और भी अच्छा। जब समय आता है तो जरूर मिलता है, और हो सकता है भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा हो, इसलिए जो हम सोच रहे हैं वो छोटा है, उन वो और बड़ा कुछ देने वाले हैं। हमेशा पॉजिटिविटी में, अवेयरनेस में रहें। और अपने बच्चों के लिए ये मत बोलिए, मतलब हम तो ये बोलते हैं कि भगवान उसके लिए जो अच्छा हो वो करिए, क्योंकि क्या पता हम भगवान से 90% मांग रहे हैं, उन्होंने उसके लिए 95% सोच के रखा है, और वो देंगे कि 90, क्योंकि ये तो 90 मांग रही है ना। इसलिए उनके लिए बोलिए कि भगवान इस बच्चे के लिए जो अच्छा हो वही करिए, है ना। कई बार हम लोग के डिसीजन से बहुत बड़े भगवान के डिसीजन होते हैं, एंड दे आर बेस्ट फॉर आवर किड्स, या किसी के लिए भी। मान लो हम अभी आइडियल वेट के लिए काम कर रहे हैं, तो मान लो हमने लिखा कि 70 kg हो जाए, और भगवान चाहते हैं 65, लेकिन वो 70 पे आके अटक जाएगा, क्योंकि उसने मांगा ही यही है ना। तो इसलिए उनको बोले कि भगवान इसके लिए जो अच्छा है वही करिए। दुआओं में बहुत ताकत होती है, ये जो हम लोग क्लासेस करते हैं ना, जस्ट इसीलिए कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी, औरों की दुआएं मिलेंगी। तो हमेशा याद रखो, दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे उतना अच्छा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। और हमेशा याद रखिए कि रब की रजा में राजी रहो, जो भगवान कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बेस्ट कर रहा है। समय होता है हर चीज का, कई चीजें अभी नहीं मिलती, बाद में मिलती हैं, इसलिए रब की रजा में राजी रहिए। और जी में भर के मत जियो, जी भर के जियो, है ना। वो कुछ कुछ कुड़ के नहीं जीना है कि अरे ये नहीं है वो नहीं है। जी भर के जियो, खुल के जियो, मजे से जियो, मस्त होके जियो। सपने देखते रहना, हमेशा बड़े सपने देखना, और अपने सपने उन्हीं से शेयर करेंगे जो हमारी बातें समझेंगे। छोटे मोटे लोगों से अपने सपने शेयर भी नहीं करेंगे, अदरवाइज वो हंसेंगे, अभी तो है कुछ नहीं और बनती बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो सपने हमेशा अपने बड़े लोगों से, पॉजिटिव लोगों से शेयर करना। एंड डू वॉट यू लव, या लव वॉट यू डू। या तो जो काम आप कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, या जो काम आप कर रहे हो उससे प्यार करो।
अपने काम जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको महीने का खर्चा दे रहा है, उसको नैगिंग कर करके मत करिए, मजा नहीं आ रहा, टाइम बहुत है काम का, सैटरडे संडे भी काम करवाते हैं, वहीं से हमारी सैलरी आ रही है, वहीं से हमारा घर खर्च चल रहा है। तो इसलिए हमेशा जिस काम में अभी आप हैं उसको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो you will get definitely whatever you want. And I have achieved for my husband, like जो उनको जॉब चाहिए था, उनका मनचाहा जॉब मैनिफेस्ट करा है, बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं। And women is a powerhouse because she has a feelings, है ना। हम लोग तुरंत रोने लगते हैं, कुछ भी बात हुई, कुछ भी हो गया तो हम लोग पावर हाउस होते हैं, क्योंकि हम लोग के पास फीलिंग्स ज्यादा होती हैं। और ये बात मैन ने भी एक्सेप्ट करी है कि यस, women is a power house because women has a feelings। तो हमेशा अपनी शक्ति को याद रखेंगे। हाँ, और भगवान पे भरोसा करने की बात पे एक बात याद है, 2 लाइन की एक स्टोरी है। एक बार एक जना जा रहा होता है, उसके साथ साथ सी बीच पे भगवान भी चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। तो थोड़ी दूर में जाके बहुत डार्कनेस आ जाती है, और उस इंसान को सिर्फ पहले उसको 4 पैरों के पंजे दिख रहे होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे होते हैं सैंड में। थोड़ी दूर जाके उसको बहुत अंधेरा आ जाता है, और वो देखता है कि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो बाद में भगवान से पूछते हैं कि भगवान, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं बिल्कुल अंधेरे में थी, उस टाइम आप कहाँ गए थे? तो भगवान बोलते हैं कि वो जो तुम्हें 1 पेयर ऑफ फुट स्टेप दिखाई दे रहे थे, वो मेरे थे, और मैंने तुम्हें गोदी में उठा रखा था। तो जब ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो भगवान अपने छोटे बच्चे की तरह हमें गोदी में उठा लेता है, और हम भगवान पे भी शक करने लगते हैं कि मुझे अकेले छोड़ के चले गए। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें धीरे 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 करके काम करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना है, अवेयरनेस में लाना है, कि लोग मिलके ही सोचें कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपसे बात करना चाहें, हर समय नेगेटिविटी नैगिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीलिंग्स चार्ट। इफ यू वांट मी टू शेयर फीलिंग्स चार्ट, एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। सी, दिस इज द फीलिंग्स चार्ट। इसमें ऐसे होता है कि यहाँ पे देखिए, आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड पावर ऑफ फीलिंग्स, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये 4 सेक्शंस में आपको डिवाइड हुआ दिखा दे रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वर्टिकल लाइन है। सबसे ऊपर व्हाइट कलर का बड़ा डॉट दिखाई दे रहा है, जो मन चाहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है मन चाहा, हमें ये चाहिए, यहाँ तक जाना है। सबसे नीचे है ब्लैक कलर का डॉट, एंड दिस इज अनचाहा, ये जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये फीलिंग्स चार्ट इज टेकन फ्रॉम द पावर बुक बाय रोंडा बर्न। बुक से लिया गया है, ये रोंडा बर्न की बुक है द पावर, उससे लिया गया है। सो यहाँ पे जो बीच में लाइन है, ये एक लाइन ब्रेक करती है हमारे मन चाहे और अनचाहे को। तो कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स? यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले होता है सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब कि वॉट एवर वी हैव टू बी सेटिस्फाइड। जो भी पैसा, बच्चे, घर, रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ है, हमें सेटिस्फाई रहना है। यहाँ से हमारा मूड शिफ्टर स्टार्ट होता है टू बी इन पॉजिटिव फीलिंग। देन सेकेंड होता है होप, कि हमें आशा है कि आगे जो भी हमें चाहिए वो मिलेगा। देन एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट, कि सच में वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट, और हम उसके ऊपर इंस्पायर्ड एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे हम एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। देन पैशन, जो हमें चाहिए, फिर उसकी खुशी होने लगती है, धीरे धीरे जॉय होने लगता है ना, कि मिल रहा है, मिल रहा है, थोड़ा बहुत भी जो मिलता है उससे खुशी आने लगती है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड पे करना होता है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव फीलिंग्स में ग्रेटिट्यूड पे करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लव, प्यार। टॉप मोस्ट फीलिंग इज प्यार, प्रेम, जो बहुत मुश्किल से होता है। असली प्रेम, वो इलू इलू वाला प्रेम नहीं, आई लव यू कर लिया हो गया वैसा वाला नहीं। जो असली प्रेम होता है, जो दिल से निकल के आता है, बहुत तरह के प्यार होते हैं, वो टॉप मोस्ट फीलिंग होता है इस फीलिंग्स चार्ट में। इसीलिए हमने वो जब भी आपको एक्टिविटी करवाई ना कि लव माई सेल्फ, और उसमें सभी ने लिखा कि बच्चों को प्यार करते हैं। अच्छी बात है, हम लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन अपने आप को भी प्यार करना है। एंड देन इसके अपोजिट अगर देखें, अनचाहा, जो हमें नहीं चाहिए, तो बोर्डम से स्टार्ट होता है। अरे मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं क्या करूं? तो ये बोर्डम, जब खाली है घर में, कहीं कुछ करने आने जाने को नहीं है, आज संडे का दिन है, कहीं जाना नहीं है, तो बड़ा बोर फील हो रहा है, क्या करें? फिर उससे इरिटेशन होने लगता है, बच्चों ने कुछ कह दिया, इरिटेट हो गए। उसके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, मेरा सब कुछ खराब चल रहा है, क्या करूं, कुछ नहीं अच्छा हो रहा। फिर वरी, चिंता, क्रिटिसिज्म, एंगर, गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हेट, जलन, अरे उसके पास BMW है, मर्सिडीज है, कुछ काम भी नहीं करता, पता नहीं ब्लैक का मनी होगा, तो हेट होने लगती है, चिड़ मचने लगती है। एनवी,
जलन, गिल्ट, फिर है ना गिल्ट में आ जाते हैं, देन डिस्पेयर निराशा, एंड देन फियर, सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। बच्चे जो बाहर होते हैं पता नहीं क्या करना होगा, सही से होगा या नहीं, तो फियर इज द मोस्ट अनचाहा, जो हमें नहीं चाहिए। सबसे लास्ट की फीलिंग है फियर, इसलिए फियर में आने से पहले ही जब बोर्डम शुरू होता है यहाँ पे, तभी उसको हम काम कर लेंगे, बोर्डम को मिटा लेंगे, और फिर ये सारी फीलिंग्स होंगी ही नहीं हमारे अंदर। तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहोगे तो ज्यादातर काम बनते चले जाएंगे, पॉजिटिविटी एंड अवेयरनेस में रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीलिंग्स चार्ट। Yes. So thank you so much everyone for joining in. This is all about gratitude, law of attraction, manifestation, visualization, everything, everything. And I hope you have taken some benefit from the session. Thank you so much, Deepti, for organizing such a wonderful session. Thank you for inviting me. Yes. Any questions or sharings? Thank you, Richa ma'am. I would just ask if anybody has questions. You can just type it in the chat box or you can ask directly. Richa ma'am is here, so I think we should utilize this opportunity to have a face-to-face interaction with her. No questions, ma'am. Just wanted to share my gratitude. Thank you for the session, and it was really insightful. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Nidhi, for giving me this idea. I'm especially grateful to you, Nidhi, for giving me this idea to take this webinar. And I hope It's a, yeah. it's a wonderful session, Richa. It's a wonderful session, really. Thank you so much. Someone is asking how can we get in touch with you. So Happiness Magnet by Richa Agarwal is my YouTube channel. It is written on my back screen. Happiness Magnet by Richa Agarwal is my YouTube channel. And you can have my number also and directly message me. My number is chat में type भी कर देते हैं 9619 570728. It's 9619 570728. And believe me, this gratitude works definitely. I'm into this journey from last 4 years. और बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, बहुत सी पॉजिटिविटी अवेयरनेस आई है। जो छोटी मोटी चीजों में हम लोग चिंता में आ जाते हैं ना, अब क्या होगा तब क्या होगा, बहुत पॉजिटिविटी भेजते हैं। माई सन इज नॉट हियर, लाइक ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ही इज वर्किंग इन हैदराबाद, तो उसके लिए भी कई बार बहुत सी चीजें आ जाती हैं, या डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है, बट उसको पॉजिटिविटी से हैंडल करना आ गया है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गिल्ट। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन आएगी तो बोलेंगे कबूल है, जो भी चीज आई है वो कबूल है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो देखना अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस और शेयरिंग्स? Yeah, Richa, just one query. How do we deal with the external environment which gives us negativity? Yes, Like, yes, fine, this is something which we are working within ourselves, within our homes actually. yes, yes, But once you get inside, today is a Sunday, so we all are very positive. But once you once you reach your office and then the politics and the external negative environment and everything affects you. So how do you tackle with that at that point in exactly. time? That was Yeah, exactly. Very nice question, Paritosh, and very general common question. सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बाहर वाले खराब हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली इन ऑफिसेज एंड बाहर। कोई रिलेटिव मुझे ऐसे कर रहा है, कोई मुझे टीज कर रहा है ना, इरिटेट कर रहा है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ। वही कहते हैं कि जब ऐसे उंगली करी ना, तो एक उंगली सामने वाले की तरफ है, 4 उंगली हमारे तरफ है। वी हैव टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ। जब हम अपने आप को अच्छा कर लेंगे तो हमें बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी। और ये सब सच में कहने वाली बातें नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ग्रेटिट्यूड की, जो लोग आपके लिए गंदे हैं वो इतने अच्छे बन जाएंगे कि वो आपकी तारीफ करेंगे, वेदर इट इज सिचुएशन, वेदर इट इज पीपल और वर्क फोर्स, जो भी कुछ है। जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और पीपीएफ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट का ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का। तो जो ब्लेम गेम, वही हमने बोला ना, पहले हमारी भी लाइफ ऐसी थी, क्रिटिसिज्म, ब्लेम गेम, अभी कंपैरिजन, ब्लेसिंग्स, ये सब आ गया है। धीरे 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 करके उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन आप देखोगे कि या तो वो लोग आपकी लाइफ से दूर होते चले जाएंगे, और या वो लोग चेंज हो जाएंगे। बहुत सी चीजें हम लोगों ने ऐसे में एक्सपीरियंस करी है, लोगों ने शेयर भी करा है कि हाँ वो लोग इतने चेंज हो गए हैं। इवन इन लॉज के साथ होता है, लेडीज का ना, बहू ससुर ये वो सास, तो वो रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं बाई पेइंग ग्रेटिट्यूड। हम कोई दूध के धुले नहीं है कि हम बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं ना, देखो एक हल्का सा एग्जांपल बताते हैं इसमें, शादी को लेके जो डाइवोर्स वगैरह भी हो जाते हैं ना, वो लोग भी वापस रीयूनाइट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि
जब हमने शादी करी थी तो हमको उसमें कुछ अच्छी चीज दिखाई दी थी, तभी हमने शादी करी थी। और हो सकता है वो हमें कहीं घुमाने भी ले गए हों, कोई गिफ्ट दिए हों, जो भी उन्होंने करा छोटा बड़ा, उसके लिए जब हम उनको ग्रेटिट्यूड देंगे ना, तो आवर फ्रीक्वेंसी एंड आवर फीलिंग्स हमारी उनके प्रति चेंज हो जाएगी, और वही लोग हमें या तो अच्छे लगने लगेंगे या वो हमारी लाइफ से निकल जाएंगे। ऑफिशियल एनवायरनमेंट में इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करना, आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड की डोज बढ़ानी पड़ती है, और रोजमर्रा के घर के लिए हम लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है, बट होता जरूर है। आई होप योर ठीक है। क्वेश्चन आंसर Yeah, परितोष। yeah, Richa, and thank you so much. It was really very nice and enriching. So, obviously we'll be in touch. So, we'll start practicing, and then maybe जैसे जैसे कुछ impediments बीच में आते हैं तो we'll keep in touch with you. Thank you so थैंक यू much सो for this मच। session. Thank थैंक you. यू सो मच पारितोष, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। एंड नाउ एक बार सीक्रेट मूवी जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग, अगर होगा तो। इट्स 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एक बार में नहीं ठीक है। समझ में आएगी, 2-3 बार भी देखेंगे तो चलेगा, तो बेस Done, बन। done. और अगर Sure, कभी भी sure. मौका मिलेगा तो ग्रेटिट्यूड जर्नी में जुड़ेंगे। हमारे बैच के बहुत से लोग हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। अभी यहाँ पे नाम नहीं ले सकते इस नहीं वक्त। नहीं, I'll start from today itself. हाँ थैंक यू पारितोष, थैंक यू। सो Yeah, एनीवन thank you. एल्स और एनीथिंग एल्स? Thank you so much, Richa ma'am. Very insightful session. I think, a lot of us are going to go back and, implement this in our day-to-day lives, and we'll work towards it. Thank you for sharing your number also. You've given us an opportunity that we'll connect back to you. You've helped us a lot. Thank you so much. Thank you so much, Deepti, for inviting me here, and thank you for joining everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Deepti, yeah, the session will off by you, Deepti. Yes, Okay, we'll end the session, yeah. and Thank I'll you. Bye-bye. Have a nice day. share the recording with you. Thank you, Richa. Thank you so much. Thank you so much, Obviously. Geetanjali. Thank you. Love, light and abundance to everyone. और आप सभी अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए, जल्दी जल्दी आपके सारे मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। May God bless you all. Enjoy your days. Enjoy Sunday. Thank you. Bye.